very eminent experts with us who will share their important views on this very important topic. And I would like to give a very brief introduction of our experts. We have with us Dr. Rajneesh Kapoor, who is the Vice Chairman, Department of Cardiology, Medanta, the Medcity. Dr. Kapoor is a leading cardiologist in India with over 30 years of experience. He is known for innovative techniques in cardiology and is the recipient of various national and international academic awards in the field of intervention and patient care. Prior to Vedanta, he worked with Apollo Delhi and Fortis Escorts as well. Apart from it, he has also published over 100 articles in leading journals. We are also having with us Dr. Anil Dhal, who is the head of Department of Cardiology, Janakpuri Super Specialty Hospital, New Delhi. Mr. Dhal is the alumnus of Armed Forces Medical College, Pune, and spent 25 years in the Indian Armed Force, where he was the last posted as senior advisor and professor, Army Hospital, Delhi, Kent. During his service, he was awarded the Presidential Decoration of Sena Medal in 2005. He has been a postdoctoral teacher and examiner in cardiology and has guided ICMR, FMRC, and other research activities. We also have with us Mr. Dinesh Arora, Deputy CEO, Microport Cardiovascular Private Limited, who is also member of SHM Delhi State Development Council. We are also joined by Shri Neeraj Arora, Assistant Secretary General SHM, and I would like to request Shri Neeraj Arora to deliver the opening remarks. Thank you, Avinash. Thank you so much. First of all, I would appreciate that we are organizing the virtual session on this very burning subject. So myself, Neeraj, I am Assistant Secretary General at SOCHM and look after the Delhi State Development Council also, other than certain sustainability related councils. So I would like to welcome our galaxy of speakers, starting with Dr. Rajneesh Kapoor ji. Welcome, sir, for sparing the valuable time and joining us for this wonderful discussion. And Dr. Colonel Anil Dhal Saab, welcome, sir. We have with us Mr. Dinesh Arora ji also, who is member Delhi State Development Council. Welcome, sir. So nowadays, as we are seeing that, पहले क्या था, so basically we would love to have this interaction, this to make this session very interactive. We would request our participants also so that they can send their questions on the chat box, and we will like to take the questions during the session. तो हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट डिजीज़ जो हैं ये कोई बहुत नई नहीं है हमारे लिए. हार्ट डिजीज़ बहुत पहले से होती रही हैं, लेकिन आज का जो लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस है और जो इरेगुलर एक्टिविटीज़ है, हमारा जो सिटिंग बढ़ गया है, और इनफैक्ट लास्ट 2 ईयर्स से ड्यूरिंग द कोविड टाइम आई थिंक हमारा जो सिटिंग टाइम है, घरों पे रहने का टाइम है, वो ज़्यादा बढ़ गया है. सो ये जो हार्ट डिजीज़ हैं ये बहुत प्रोमिनेंटली बाहर आई हैं. दूसरा जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो एज अ कॉमन मैन वी कैन आस्क इज हमें ये समझना है कि एक रेगुलर हार्ट अटैक और एक कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या सिम्टम्स हैं, दोनों के क्या प्रिकॉशंस हैं. कुछ एक बात और है कि जैसे पहले ये था कि पहले हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होती थी और ये जो हार्ट डिजीज़ हैं ये 60s की एज में आती थी या 70s की एज में आती थी. बट अब रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स और लास्ट 2 साल में हमने इंसिडेंट्स कुछ ऐसे देखे हैं कि यंग एज में 40s की एज में, रिसेंट एग्जांपल हमारे पास है अभी कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए कार्डियक अरेस्ट आ गया. हमारे एक बहुत एमिनेंट एसोचएम के मेंबर होते थे. कोविड टाइम में ही वाज डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, साइकिलिंग वो कर रहे थे, साइकिलिंग करने के दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया. तो इस तरह के इंसिडेंट्स आजकल बहुत सुनने को मिल रहे हैं और यंग एज में हो रहा है. तो ये बहुत एक सीरियस मैटर है आई थिंक. तो इस पे आई वुड रिक्वेस्ट आवर एमिनेंट स्पीकर्स टू पुट सम लाइट ऑन दैट. So I'll not take much time and would request Dr. Rajneesh Kapoor ji for his valuable address. Sir. Over to you, sir. Privilege to be here in this forum, and I think this is absolutely valuable that we should generate such talks and such forums more frequently to enhance the awareness amongst the society. So we know that we have been doing such acts and such presentations time and again and frequently, but still we know that we are lacking because अभी भी इसका जो impact है society में उतना नहीं है. And examples are very clear. You also mentioned that many deaths are happening because of heart disease, and the real concerning factor also is now they are happening in a younger individuals. Previously, what used to happen beyond 60 or beyond 70 years of age. So now even more younger individuals are at risk,
and they are not at risk, actually we are losing lives. And the biggest example a few months back is our versatile singer KK. We lost him. He had some discomfort while doing a concert, and then because of some factors he couldn't reach a hospital, and practically we lost a valuable life which was an asset to India. And this is just one example. We actually lost many young lives in last 6 months because of heart disease and because of sudden cardiac deaths. So now practically all sudden deaths, 95-97% are attributed to heart disease, whether symptomatic or asymptomatic. The baseline, there is a heart problem, and that leads to a trigger and leads to sudden cardiac arrest. So it is highly valuable to talk of such scenarios, so that we can impact a change. We can impact a change in the thinking of society. Yes, in last decade or so we have moved from uh, you know totally into a different lifestyle. So if we talk of 20 years back or 10 years back, the lifestyles were much more comfortable, the stress was much lesser, the diet was even better. There was, people were walking or, riding a bicycle, which is totally elusive now. It's totally erased from the society. And that is the reason we are highly vulnerable for more and more advanced form of heart disease, and more serious incidents because of heart disease are happening. So I will take this opportunity to take you through that how we can prevent a cardiovascular disease and how we can prevent such like events where we can save a lot of lives. So that will be my topic. And if, as Neeraj ji mentioned, we tend to make it interactive. If there are any interactive questionnaires during this presentation, I'm absolutely open. Interactive is always better. So Neeraj ji, you can take up the questions, present it to me, and we can answer and answer those questions in a well-formed manner, so that we enhance the total awareness and information to our audience. So prevention of cardiovascular disease with India in context. This is my presentation. I am starting. So is it visible? Are my slides Yes. visible? Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. So we know that cardiovascular disease as a cause of death. Cardiovascular disease, in fact, is a major cause of mortality, and especially in our segment. So see, if we see the data in US or Europe, they have quite contained this mortality because of cardiovascular disease. But in India, this is rampant. 1990 versus 2020, see, 23% of deaths are attributed to cardiovascular disease, but they are increasing exponentially. And in 2020, almost 33% of deaths are attributed to cardiovascular disease. This is a huge number. So India, on one side, India is shining. We know our prime ministers are doing, our prime minister and all present government is doing a wonderful job in taking India in the progress and to the path of a developed nation. But actually, it's a double-edged sword. So once we talk of this, we know that with this fast pace, lot of other factors come into play. So on one side, there is economic productivity, but on the other side, health takes the hit. So because of many variable factors which come with a fast pace of life, health hazards come into play and health takes the biggest hit. So in India, the coronary artery disease, the heart disease acts like an epidemic. So it's high proportions. We are highly vulnerable. The frequency and incidence of heart disease in rural as well as urban population is very high in India. And if we talk of numbers, almost 8 to 10% of population is afflicted. So out of 100 patients, there are 10 individuals who are afflicted with heart disease. This is a huge number. Now, why Indians? This is a big question. So genetically, we as Indians are heavily predisposed to heart disease. We are exposed to high risk factors for heart disease, which includes the diet and sedentary lifestyle. And because of genetics, there are some factors which play a very strong role in making the Indians vulnerable for heart disease. So this is one area, and this is an area of concern that Indians are highly vulnerable. And then if we talk that whether a heart disease is presenting in a different manner in Indians, yes.
Again, it is more malignant and more complex type of heart disease which we find in Indian patients. Usually the blockages are more diffuse, more severe, multiple, and the coronary arteries are very small in caliber. And as Neeraj was also pointing in his opening address, that in Indians, the heart disease presents as at a much younger age. And also, whenever a heart attack happens, Indians are more vulnerable to have the mortality because of heart attacks. So these are some of the differences which in Indian population vis-a-vis a Western population is there as far as the heart disease is concerned. Let's talk of risk factors in heart disease. Diabetes is a very big risk factor, and the biggest concern again here is that India is a diabetic capital of the world. So practically diabetes is taken as a coronary artery disease equivalent. So any diabetic is highly vulnerable to be actually afflicted by a heart disease or coronary artery blockages. So these are the figures in India. By 2025, almost 60 million patients of diabetes are there or will be there. So diabetes we know is a very strong risk factor. And then there is a high blood pressure. So this is also highly prevalent. I think no family is escaped from this. One member or the other member is suffering from high blood pressure in India. And the irony is that usually Indians take it very lightly. Even if the blood pressure is 145, 90, so they take it very lightly. They get it checked, but they say it's okay. It's just mild raise. So we don't need to take pills, or they are not compliant with the medication. They are not compliant with lifestyle modification changes. So, but then in the long run, this high BP is a big strain on the heart and makes the heart more vulnerable for such like events. So one should be really cautious in getting a blood pressure totally under control. Even the mild increase in blood pressure in the long term will be detrimental for heart. So there are two risk factors we talked: the diabetes and high blood pressure. Obesity is again a lifestyle disease, and obviously the numbers of obese individuals are on the rise in India, and the prevalence is very high. So if we talk of fats, 2 to 7% of the total health cost in developed countries is due to obesity. So this is again in context to obesity. So now with these things we have talked about, high blood pressure, diabetes, obesity, we we coin a term called metabolic syndrome. So if the waist circumference is high, if the blood pressure is high, more than 130 and 85, if the fasting blood sugar is more than 100, which is a pre-diabetes range, if the triglycerides, the cholesterols are more than 150 and HDL is low and LDL cholesterol is also high, this actually constitutes a metabolic syndrome. And once we say that patient has these factors and patient is having a metabolic syndrome, he becomes a total milieu for heart disease. He harbors a heart disease actually, and this is just with a matter of time will express and cause the problems. Now, on top of this, there are some factors which are genetically linked, but there are other factors which are environmental and reversible factors, but many people actually adhere to this. One factor is cigarette smoking. Now, smoking is highly malignant factor for heart disease. It increases the mortality by 50%. The risk increases with age and number of cigarettes one smokes. Similar profile in women, and it's a leading cause of preventable deaths. So all this now constitute a faulty lifestyle. We have talked of diet, sedentary lifestyle, smoking, alcohol intake, and stress. Now, all these factors, in one manner or the other, are leading to some other factors which are leading to heart disease. Stress, faulty diet, sedentary life leads to obesity, leads to diabetes. Smoking leads to high blood pressure. Alcohol leads to many things in the body. So practically all pointers leading to cardiovascular disease. So if some individual is having these faulty lifestyle parameters, ultimately it leads to cardiovascular disease.
Now, having said that, if we talk of cardiovascular disease, we do have a proud feeling that we have institutions where we can treat these diseases in a absolutely efficient manner, and we are absolutely at par with the Western world in terms of technology, in terms of skill, in terms of talent, everything. But even if we start treating the heart disease, India do not have that infrastructure to treat heart disease at a grassroots level to the masses. So that means the biggest weapon in our hand to combat, to curb the heart disease is the prevention. The best way to escape from heart disease is to prevent it. And best way to prevent is to modify a lifestyle. I think the whole message of my talk lies in this slide, that we need to take measures how to prevent a heart disease. And if we do that, I can tell you that we can cut down the heart disease by 40 to 50% in our society. And these are very simple measures. I'm not talking of any out of the box measure. Only thing is, we do not adhere to this. We do not reinforce within ourselves. We keep ignoring this time and again. So lifestyle modification comprises of these four factors: the dietary prudence, the regular exercise, absolute no to smoking, and the stress management and relaxation techniques. Just few slides one by one to each. Dietary prudence: we know our diet comprises of fats and carbohydrates. Now both carbohydrates and fats are detrimental for heart, and they lead to progression of blockages inside the small arteries of the heart, leading to heart events. Just broad points I'll catch up. I won't go into the detail, time won't allow. So the fats are basically saturated fats and unsaturated fats. Simply, if we change the quality of fats in our diet from saturated fats to unsaturated fats, we start consuming that, we can decrease the coronary artery disease incidence by 42%. It's a big scale. The trans fatty acids are again a big villain. Now, how trans fatty acids are generated in the diet? Uh, Prepared foods containing partially hydrogenated vegetable oils, all biscuits, all cookies, all crackers, all baked goods, all commercially prepared fried foods, margarines, these contain trans fatty acids. And to give you an overview, trans fats are generated if the frying of the food continues in the repeatedly used oil again and again. So that generates the trans fats in the food. We need to cut down on these foods. The saturated fats and trans fats increase the LDL levels. Trans fats also decrease the HDL levels, which is a good cholesterol. So the ratio becomes very bad. So trans fats consumption is a great adverse effect on lipoproteins also. Practically, all in all, trans fats and saturated fats are bad for the heart, and unsaturated fats are relatively better fats, and they are good fats for the body. Fish oil is considered relatively better, and there are studies which have clearly shown that if somebody is consuming fish which contains a high content of omega-3 fatty acids, which is salmon, mackerel, sardines, so they have usually a lesser heart disease prevalence as compared to the others. If we summarize the diet, 3 or 4, 5 points: quality of fat is more important than quantity, which we talked. The atherogenicity, the thrombogenicity, which means the vulnerability of heart disease, with tropical oils is several times higher than the meat. This is very important. Trans fatty acids and saturated fats are bad. Both quality, in terms of, now we're talking of carbohydrates. There are many studies which say now the more load is on carbohydrates, more big villains are carbohydrates than fats for the heart disease. So the carbohydrates which have a high glycemic index, they are not good for heart. So practically, if I have to tell you some foods, the potatoes, the banana, the rice, these are foods with high glycemic index. So high glycemic index carbohydrates are again detrimental for heart. And what are good for heart? The nuts, fruits, vegetables, and whole grains. The consumption of these reduce the incidence of heart disease.
Tea is good, it contains anti, but then if we add milk to this, we neutralize the beneficial effect of tea. Any calorie is a calorie, whether derived from carbohydrate, protein, or fat. So we have to restrict, we have to have a balanced calorie intake. Obesity is a reflection of overnutrition, caloric excess, and we need to restrict it. Exercise is very important in curbing or controlling or decreasing the heart disease. So practically we say 5 days a week, almost 4 or 5 kilometers a day, brisk walking or jogging or any cardio activity is good in order to decrease the heart disease or in order to contain the heart disease. So exercise, diet, they are extremely important steps. Again, I mention, we all know it, but we tend to ignore it. We do not reinforce within ourselves that these are the things which we should do in our daily day-to-day life to curb the heart disease. Another big factor which has entered into our day-to-day routine situation is a stress. Now, stress is something which has again triggered or is increasing the heart disease or at least increasing the heart events. Stress will be part and parcel of our life. We can't really be elusive from this in the present circumstances, but then we should know how to manage it. So looking at issues more logically, talking through problems. Do not keep the problems within you. Talk it out with your friends and family. So if Neeraj ji allows me, I think I'll recite a sher. So there is one Punjabi shair who wrote these lines, and that actually gives the gist that how we can manage our stress. So this shair had to undergo a bypass, so he wrote these lines. अगर की होती खुल के दिल की बातें यारों से, अगर की होती के दिल की बातें यारों से, तो शायद आज जरूरत ना पड़ती दिल को चिरवाने की औजारों से. So I think this way we know that we accumulate the stress inside, we multiply the stress. We talk it out, we decrease the stress. So this is highly important. Being well organized, talking your problems with your friends and family goes a long way in mitigating your stress and improving the situation inside. Relaxation is again very important. A new factor, I'll like to talk about this. A new factor has entered into a foray, which triggers the heart disease further, is sleep deprivation. Everybody is so ambitious these days. In our field, in other fields, in fields, I don't know the situation of ASSOCHAM. So, but then I think that ambitious lifestyle has somewhere led to a sleep deprivation. Everybody wants to achieve more, wants to put in more hard work, wants to put in more hours, but somewhere that led to sleep deprivations. So again, the gist lies here. I did a study at Medanta where we just enrolled a young executives for lesser than 40 years of age presenting with heart attacks over 2 years, 2.5 years, and just uh, try to locate their risk factors. There were other risk factors. Many of them were smokers. Few were diabetics also. But a big, surprising, shocking risk factor came forward as a new risk factor. 75–80% of these individuals were actually sleep deprived, young executives. This is where I like to put emphasis. Now, the artists, especially the story of KK or the other artists who get a heart attack or sudden death at a younger age, they are usually very ambitious, performing and trying to put in more hard work, trying to do more and more concerts and programs and traveling. So that is a big stress. And in that context, the stress is there, stress of performance is there, and also they are sleep deprived. So that leads to a milieu which makes them more vulnerable for heart events. So these are the risk factors. We talked of the risk factors and how to prevent and how to modify that. So why we talk of that, the reality check, why I was mentioning that infrastructurally we are much lesser as compared to Western population. India actually is devoid of appropriate number of physicians or nurses or hospital beds per 1,000 population. So this is India versus other countries. So clearly India is much deficient still.
So India needs lots of extra beds to meet the IPD treatments, many qualified paramedical staff and more doctors, and big investment. So infrastructurally, we are not there. That's the reason the emphasis should be on prevention. And why infrastructurally we are not there? This is the area where India lags behind. That India only spends 4.4% of the GDP on healthcare, vis-a-vis US. Look at that, 23% of the GDP on healthcare. We can't match those healthcare facilities. We will not be able to match in next 50 years also. So we have to be very aware how to combat or curb the heart disease. Now, having said that, I think the message is that we should do all possible means to change our lifestyle, to rectify our lifestyle in a healthier manner to curb the heart disease. I'll end with last 3 or 4 slides with the humor. Solutions we talk of. So why there is still a problem once somebody gets a heart attack or somebody requires a heart treatment once we talk of masses. So access to medical care is still limited. Cost is a major constraint. Burden of heart disease is exponentially rising in India. Now, these are last few slides, which tells the story of a Indian common man who gets a heart attack one unfortunate day and is taken to a good hospital, tertiary level hospital. The efficient team of doctors is doing the procedure on this sick patient. The patient gets better. He's a healthier individual again. He's thanking his doctors, is highly grateful. He goes to the account section and gets a heart attack again. So this is the story and irony. Still, we keep confronting, we keep trying to solve that. We have all the means available, but still we can't treat the masses. We can't treat only 5% of the Indian population is actually accessing this healthcare. It is not accessed by a rural population or one who's living in deep rural areas of UP, Madhya Pradesh, Bihar, Odisha. So there is still a long gap. We need to cover this, and I believe the ASSOCHAM could be a big conduit to plan out certain strategies where if possible, the medical care can be made more, cost effective for all the masses. Thank you very much. And if there are questions, I'm here and happy to answer. Thank you. Thank you, Dr. Kapoor. Thank you so much. I think this was a wonderful presentation. तो आपकी बातचीत से ऐसा लगा कि ऑल्दो ये डिजीज़ सीरियस है, लेकिन इसको हमारे डेली के लाइफस्टाइल से और डेली के जो हमारा खान पान का तरीका है और कुछ लाइफ मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट से इस डिजीज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और इसका मतलब और इससे बचा जा सकता है. सो दिस इज़ रियली वंडरफुल सर. आपने बहुत बड़े एक स्ट्रेस को बहुत स्मार्टली और इजीली हैंडल करने का तरीका बताया है. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं सर, वो हम लोग कोशिश करते हैं. पहले अनिल दास साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद वी वुड लाइक टू टेक द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक कॉमन मैन को एंड गुड पार्ट इज सर कि आज की डेट में भी आई थिंक 70+ पार्टिसिपेंट्स आर अटेंडिंग द प्रोग्राम. तो मुझे लग रहा है कि ये हम लोगों ने अपने नेटवर्क में सर्कुलेट किया था कि भाई दिस इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल इंटरेक्टिव सेशन एंड पीपल आर अटेंडिंग दिस. सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आवर डियर अटेंडीज. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट Dr. Colonel Anil Dhal Saab for his presentation. So thank you, ASSOCHAM. Thank you all. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you, Rajneesh, for setting the tone, because very correctly Rajneesh has pointed out some of the major problems, and really since it's really a bad problem to be, because heart disease kills more people than the next 4 causes of death combined. It is the #1 killer in the world. So if we look at it like that, that is a bad news. But the good news is that this is in many ways preventable, because ये जीवन शैली रोग है. अगर हम थोड़ी सी जीवन शैली सुधार लेंगे तो शायद हमारे इस रोग से हम दूर रहेंगे.
एक मेरा फॉर्मूला है विच आई टेल पीपल, रोज मरीजों के साथ भी यही बोलता हूँ। उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार और समय अनुसार उचित उपचार, तो शायद नहीं पड़ेंगे हम बीमार, शायद। क्योंकि सृष्टि का नियम है कि अब भगवान राम, भगवान कृष्ण भी वापस गए हैं, तो बीमारी आएगी। जीवन अवधि एक प्रभु ने डिटर्मिन की है या ऊपर वाले ने डिटर्मिन की है, वो लिमिटेड है। बट लेट्स नॉट जस्ट ऐड years to life. We should add years to life. We should also add life to years. So इसको कहते हुए I'll just share some slides because current संदर्भ में, क्योंकि हर रोज आज भी सुबह अखबार में 3-4 आर्टिकल थे। किसी ने एक 2-3 पब्लिकेशंस रिसेंटली हुई हैं, हमारे कोलीग्स ने किए हैं, डेटा कलेक्ट किया गया है। जैसे रजनीश ने बताया कि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर रिस्क फैक्टर्स हैज इम्प्रूव्ड, बट आई विल जस्ट शेयर ऑन 2 or 3 points because most of it has been deliberated very well by Rajneesh. But I'm just going to share a small presentation, and I hope you can see it. I'm going to put it on slideshow. Can you see it, sir? Yes, sir. Okay. So I want you to analyze some people. 2 दिन पुरानी खबर, इंडिया के बिग बुल, वॉरेन बुफेट ऑफ इंडिया, राकेश झुनझुनवाला, प्रोटोटाइप सक्सेसफुल बिजनेसमैन, 5,000 रुपए से शुरू करके 44,000 करोड़ के मालिक, सारी स्टॉक मार्केट हिंदुस्तान की उन्होंने रन की और एक बड़ा मेजर इन्फ्लुएंस बहुत एम्बिशियस यंग इंडियंस में। बट उन्होंने अपनी सेहत का कभी ध्यान नहीं दिया। सो मच सो जब वो प्रधानमंत्री को मिलने गए, वो व्हीलचेयर पर बैठे रहे, उठ ना सके। और उनका ये गम था कि 44,000 करोड़ तो उन्होंने कमा लिए, पर अपनी सेहत पे उन्होंने ध्यान नहीं। सारी दुनिया को हंसाया, सारी दुनिया को हंसाया राजू जी ने। बट अनफॉर्चुनेटली जिम में वर्कआउट करते हुए उनको सीने में दर्द हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, रिवाइव करने का प्रयास किया गया। बहुत दूर नहीं थे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, वहां रश किए गए, एंजियोप्लास्टी हुई, नाड़ी खोल दी गई, पर अभी भी वो पूरी तरह बाहर नहीं है। कह नहीं सकते कि वो रिकवर करेंगे कि नहीं। के साहब, उनकी आवाज ने, उनकी मधुर आवाज ने हमें 2-3 दशकों के लिए मोह लिया। और उनकी वो कविता जो बहुत फेमस की, पल, उनको हम फिर रिव्यू करेंगे। उनके साथ जो हुआ शायद हमारी सिस्टम्स ऑफ केयर का फेलियर था। कॉन्सर्ट कर रहे थे, उन्होंने कुछ बोला, उनको तकलीफ हुई, गाते रहे। उसके बाद मीडिया में बड़े तस्वीरें हैं कि उन्होंने कॉन्सर्ट छोड़ा, उनके सिक्योरिटी वाले 4-5 वॉकी टॉकी लेकर उनको चलाकर लेकर गए, कहां पर? होटल में। सीने का दर्द बढ़ा, जब तक वो अस्पताल पहुंचे बहुत देर हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेट। अगर आप बेंगलोर जाएंगे तो हर दीवार पे एक उदार, सक्सेसफुल, स्मार्ट हीरो का वर्णन है। पुनीत राजकुमार जी एक्सरसाइज करते रहे, बहुत तंदुरुस्त। तो एक तरफ हमारी एक्सट्रीम्स है, क्या? राकेश झुनझुनवाला जी जिन्होंने कभी अपने बॉडी को एक्सरसाइज नहीं किया, और पुनीत राजकुमार जी जिनको जिम में तकलीफ हुई, बट काश वो केयर के टाइम पहुंच ना पाए। एक और एक्टर, प्रॉमिसिंग यंग एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला, क्या हुआ इनको? रात को तकलीफ हुई, पर उन्होंने क्या समझा कि शायद गैस है। उन्होंने समझा कुछ गलत खाया होगा, एसिडिटी है। कोई पुदीन हरा, कभी डाइजीन लेके सो गए। इनके शुभ चिंतकों ने कहा कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे। हमें ये याद रखना है, सेकंड सेव लाइव्स, और एक हाई इंडेक्स ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन होना है, जबकि हमें तुरंत प्रेजेंट करना है
ताकि विलंब ना हो, बिकॉज थोड़ी देर भी बहुत देर हो सकती है। आपके अपने मेंबर अंकुर भाटिया जी सीईओ साहब थे, क्या हुआ इनको? कोविड से रिकवर किए, भाई हमें तो 20 मील साइकिल चलानी है, बहुत जल्दी एक्सरसाइज कर लिया। कोविड में हमें पता है कि क्लॉटिंग पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं, आर्टीरियल वीनस क्लॉट्स ज्यादा हो जाती है, कोविड से मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली दिस स्मार्ट हैंडसम डायनामिक बिजनेस लीडर सकम्ड। और भी बहुत हैं, पर मैं हमेशा बुरी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि अच्छी बातें भी हैं। हमारे अपने द प्रिंस ऑफ कैलकाटा सौरव गांगुली साहब, उनको तकलीफ हुई। नाउ एवरीबडी नोज दैट ही एक्सरसाइजेस, बट ही वेंट इन टाइम और उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई। आज वो अभी भी बीसीसीआई प्रेसिडेंट है। एक और कॉमेडियन, और मैंने कॉमेडियन के सामने कॉमेडियन रखा, उनको तकलीफ हुई, उन्होंने टाइम से उपचार कराया। तभी हमारा फॉर्मूला उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार और समय अनुसार उचित उपचार। रेमो फर्नांडिस ये कोरियोग्राफर है, इनसे ज्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता, बट फिर भी बीमारी हो सकती है। तभी मैंने कहा शायद नहीं पड़ेंगे हम बीमार, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स है। इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। थोड़े इंटरनेशनल स्टार्स चलिए, 2 फुटबॉलर्स, क्रिस्टियन एरिक्सन, इनकी कहानी का वर्णन अगर समय होगा बाद में करेंगे। डैनी ब्लिंड, ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सबक्यूटेनियस आईसीडी लगाकर आज प्रीमियर लीग सॉकर खेल रहे हैं। तो हमारे पास मौका है तब्दील करने का। जस्ट पेइंग आवर रिस्पेक्ट्स टू राकेश झुंझुनवाला जी, ओनली 62, एंड लाइक आई सेड 2030 में 23 मिलियन लोग हार्ट डिजीज से सकम्ब करेंगे। इट इज एन एपिडेमिक। और ये क्यों होती है? ये होती है क्योंकि हमारी नाड़ियों में, जैसे डॉक्टर रजनीश कपूर ने समझाया, फैट की जमावट होती है और इससे हमारी नाड़ियां ब्लॉक हो सकती हैं। और एक्चुअली उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह बताया, पर मैं, क्योंकि एक स्लाइड है, मैं इसका जिक्र करूंगा। लाइफ सिंपल 7 पिछले साल तक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती थी, इस साल उन्होंने कहा है लाइफ इसेंशियल 8। उसमें साइकोलॉजिकल हेल्थ, एंजाइटी, एंगर, हॉस्टिलिटी, पेसिमिज्म, डिप्रेशन, स्लीप, इन सब चीजों की अहमियत दी है। तो हमें, तभी हमने कहा उचित आहार, उचित व्यवहार, उचित विचार। और क्योंकि हमारे, वी आर नॉट ओनली वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज, हमारे यहाँ पर मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, और ब्लड प्रेशर हर 3 में एक इंडियन जो अर्बन इंडिया में रहता है उसको हाई ब्लड प्रेशर है। और सबसे इसमें बुरी बात क्या है, ये साइलेंट किलर है, इसके कोई लक्षण नहीं होते। मेरा एक स्लोगन है, और अगर आप वो इस भाषण के बाद सुन लेंगे और याद कर लेंगे, नो इंडियन कैन अफोर्ड टू यूज टोबैको इन एनी फॉर्म। ये एक बीमारी है जो दोनों तरफ से मारती है। मतलब यही नहीं कि जो कष्ट ले रहा है, पर वो भी जो कि कष्ट के सामने बैठा है। और हमें ये लोगों को बताना पड़ेगा कि ये एक सबसे ज्यादा प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है। अपने आहार की बात करें, WHO रिकमेंड करता है कुछ सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स की हमने बात की, 6 ग्राम नमक। हमें पता है कि चीन में पिछले साल एक शोध हुआ कि अगर हम सॉल्ट कम कर देंगे, सोडियम सब्स्टिट्यूट सॉल्ट में देंगे, तो 25 मिलियन डेथ्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं मिक्स स्पाइसी पनीर बर्गर, उसमें 17 ग्राम फैट्स। मिक्स स्पाइसी चिकन में 2.5 ग्राम सॉल्ट है। सबवे पनीर टिक्का रैप में 15 ग्राम सैचुरेटेड फैट्स हैं। और हमारी कोई भी प्रोसेस्ड फूड जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं मीट करती। और हम अपने बिहेवियर की बात करें तो पिछले साल स्विगी ने 12 मिलियन समोसे डिलीवर किए और 2 बिरयानी हर सेकेंड विद 2 लाख चिप चीज डिप्स। और हमारे खाने में क्या है, हम सब चटोरे हैं, हिडन सॉल्ट है, पिकल्स पापड्स का उपयोग बहुत है। हर एक बंदे को स्नैक्स चाहिए, फरसान चाहिए,
और ट्रांस फैट्स की मात्रा, शाम का तला समोसा ज्यादा घातक होता है बनिस्बत सुबह के तले समोसे में। और हमारी हलवाई मार्केट कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है और हम सोचते हैं हम तो शाकाहारी हैं, बट हम मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं और हम अपने आप को डिप्राइव्ड सोचते हैं। और जो हमारे फास्ट फूड एमएनसीज हैं उन्होंने तो काफी तबाही की। पर ये रहा रिस्क फैक्टर्स जिस पे मैं ज्यादा गौर नहीं कर रहा क्योंकि डॉक्टर रजनीश कपूर ने इनका वर्णन किया। पर जब हमें सिम्टम्स हो तो कैसे पहचानेंगे? बहुत साल पहले 1776 में एक्चुअली पॉइंट आउट किया गया था कि ये विलियम हेबरडन ने पॉइंट आउट किया कि ऑन अ कोल्ड विंटरी आफ्टरनून अ हेवी सेट स्मोकर कैरिंग अ हेवी लोड climbs up a hill and he feels an uncomfortable sensation in his chest। ये कोई एक पॉइंटेड प्रेशर नहीं होता, ये एक डिफ्यूज चीज है जो कहीं पर भी जबड़े से लेकर नाभि तक, आगे पीछे दाहिने बाएं कहीं भी हो सकती है। एक डिफ्यूज प्रेशर, एक हेवीनेस, और कुछ देर तक अगर ये व्यक्ति चलता रहा तो उसको हल्की सी हांफी, थोड़ा सा ठंडा पसीना, और वो फिर चल नहीं पाएगा जब तक वो बैठ ना जाए और अपना सामान रख ना दे। इसको हम बताते हैं स्टेबल एफर्ट एंजाइना, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड से आता है तो इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एंजाइना। पर अगर यही चीज हमें बैठे बैठे हो और या बिना और अगर हम सामान रख भी दें तो भी बढ़ती चली जाए तो ये हार्ट अटैक हो सकता है, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम या एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसका मायने है अगर 10 मिनट से ज्यादा ये लक्षण हो रहे हैं तो आपका हार्ट का मसल डैमेज हो रहा है, और ये डैमेज हार्ट का मसल एबनॉर्मल रिदम्स और एबनॉर्मल फंक्शन से घातक हो सकता है। तो इसको तुरंत उपचार की आवश्यकता है। हमें ये प्रोबेबिलिटी समझने में हम थोड़ा सा ज्ञान बांट सकते हैं कि सेंट्रल हेवीनेस, टाइटनेस, एक्सर्शन रिलेटेड वो ज्यादा हमारे को ले जाता है कि ये हार्ट की है। पर शार्प, फ्लीटिंग, प्लूरिटिक मतलब सांस लेने पे दर्द है तो वो कम हमें लगता है कि हार्ट क्या है। बट हमें एक रूल है मेडिसिन में, मोस्ट सिनिस्टर फर्स्ट। एक लो इंडेक्स ऑफ मतलब हाई इंडेक्स ऑफ क्लिनिकल सस्पिशन और लो थ्रेशोल्ड है कि हमें सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम घातक हो सकती है, नहीं तो कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला हो सकता है। महिलाओं में थोड़ी सी रिस्क फैक्टर भी अलग होती है और थोड़ा सा हमारे ये समझना है कि प्रेजेंटेशन भी अलग होती है। अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में महिलाएं बाय एंड लार्ज प्रोटेक्टेड रहती हैं, अगर वो स्मोक ना करें, अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन ना लें, अगर डायबिटीज ना हो उनको, और अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री ना हो। परंतु कुछ बीमारियां हैं जो सिर्फ महिलाओं में होती हैं। हमें पता है कि महिलाओं की नाड़ियां थोड़ी छोटी होती हैं और उनकी प्रेजेंटेशंस ज्यादा एटिपिकल होती हैं। सांस का फूल जाना, नोजिया होना, बैक पेन, अपर बैक पेन, जॉ में दर्द, ये ज्यादा हमें महिलाओं की संदर्भ में भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज फीमेल सिम्टम्स आर इग्नोर्ड द वर्ल्ड ओवर। क्या ये नई बीमारी है? बिल्कुल नहीं। 5,500 साल पहले का भी एविडेंस है कि नाड़ियों में कैल्शियम जमा है। पर हिंदुस्तानी हमें ज्यादा इसका गौर करना है क्योंकि हम 3.5 गुना अमेरिकन से ज्यादा, 6 गुना चीनियों से ज्यादा और 20 गुना जापानियों से ज्यादा कम उम्र में, और जैसे कि डॉक्टर रजनीश ने बताया कम रिस्क फैक्टर होते हुए भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। आज के अखबार में खबर थी कि हमारी एक स्टडी जो रिपोर्ट हुई कि 40% इंडियंस को प्री डायबिटीज है। मैं इसमें एक और स्लोगन देता हूं, एवरी इंडियन शुड बी प्रिज्यूम्ड टू बी डायबिटिक टिल प्रूव्ड अदरवाइज, बिकॉज हमारी अर्बनाइजेशन, चेंज लाइफस्टाइल ने हमें बहुत प्रॉब्लम किया है, बिकॉज वी डोंट वांट टू गो। राजू श्रीवास्तव ने बहुत हंसाया इन्होंने। आज हमें पता नहीं कि ये वेंटिलेटर से निकल पाएंगे। जब हम के साहब को देखें, हम रहे या ना रहे, याद आएंगे ये पल, तो हमें ये याद रहता है कि ऐसा प्रतिभाशाली कलाकार हमें लूज करना पड़ा इस प्रॉब्लम से। सेम थिंग पुनीत राजकुमार, सिद्धार्थ शुक्ला, ये सीईओ साहब। पर हमें एक और चीज पे गौर करना है, क्या हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज होती है कि उसमें कुछ भिन्न चीजें हैं? कार्डियक अरेस्ट एक्चुअली हार्ट की रिदम रुक जाने को कहते हैं। ये 3 तरह से हो सकता है।
रैपिड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया गोइंग इनटू वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, मतलब हार्ट अब कांप रहा है और कंट्रैक्ट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज कि हार्ट की गति रुक जाए, जिसको हम कहते हैं कार्डियक एसिस्टोली। और तीसरा पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कि हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो हो रही है पर पंप नहीं कर पा रहा है। इन चीजों को सबको हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, वेरस हार्ट अटैक का मायने है कि हमारी धमनी ब्लॉक है जो कि हृदय की मांसपेशी को सप्लाई हो रही है, और इस ब्लॉक आर्टरी को खोलना जरूरी है। हर एक कार्डियक अरेस्ट is not because of a heart attack, but heart attack is the commonest cause of cardiac arrest. Cardiac arrest patient usually unresponsive होता है और उसको तुरंत रिससिटेशन की जरूरत है। और एसोकैम के माध्यम से हम लोग बाईस्टैंडर रिससिटेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। हार्ट अटैक विक्टिम को तो छाती में भारीपन होता है जी, वो डिटेरिएट करके आपको कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, बट इसमें हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि रिससिटेशन कैसे करना है, बिकॉज एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन हम लोग समझते हैं, बट रियली इसमें जो गेम चेंजर हुआ है और वो है डिफिब्रिलेशन। क्योंकि अगर हम उस टाइम शॉक दे देंगे तो रिदम कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर आप देखें ये हिस्ट्री, जो कि अब हमारे हर एयरपोर्ट पे, हर रेलवे स्टेशन पे ये सुविधा अवेलेबल है, एंड इट कैन बी डन, बिकॉज इससे क्या होगा कि हम ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का प्रयोग करके व्यक्ति को तुरंत हम रिससिटेट कर सकते हैं और उनको तुरंत हम भेज सकते हैं फॉर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। अब हम इसको कहते हैं कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, और ये एक सिंपल चीज है जिसका हम बाद में चेन ऑफ सर्वाइवल का एक ज्यादा विवरण कर देंगे। टेलीमेडिसिन से और फायदा हुआ है। आजकल हम फोन करके ईसीजी का रिदम भेज सकते हैं, डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं, और ये सारा टेलीकम्युनिकेटर सीपीआर जो हम डेवलप कर सकते हैं। इसमें सिस्टम्स ऑफ केयर, पेरिस में एक पुलिस वाला एक एक्मोड लगा देता है जो कि एक आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन है, अगर कोई बाईस्टैंडर को रिससिटेट कर रहा हो। पर अगर हमारी छाती बंद है तो ये नाड़ी बंद होने से है, इसमें कुछ ईसीजी के चेंज होते हैं, क्लॉट भरने से होता है, और अगर एक इंडिकेशन है एंजियोप्लास्टी का तो वो है कि इस नाड़ी को हम तुरंत खोल के क्लॉट निकाल के इसका हम फ्लो रिस्टोर कर दें। तो इससे जान बचती है, क्योंकि हार्ट में मसल का डैमेज कम होता है। पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि पहले 2 से 4 घंटे सबसे जरूरी होते हैं, बिकॉज इसके उपरांत डैमेज हो गया, अब बचता है होत क्या, चिड़ियां चुग गई खेत। तो सबसे ज्यादा हमें पहले 2 से 4 घंटे में हमें इसकी लक्षण को समझना है और तुरंत ऐसी जगह ट्रांसपोर्ट करना है विदाउट मूवमेंट जहां पर के कोई सुविधा है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या क्लॉट बस्टिंग ड्रग देने की। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एस्पिरिन की गोली च्यू करा दीजिए, व्यक्ति को बिठा दीजिए, उसको सराउंड मत कीजिए, सांस लेने दीजिए और फोन करके हेल्प बुलाइए। एक और चीज मैं बात करूंगा, ये आजकल जो जिमिंग का बहुत एक तरह से माहौल शुरू हो गया है। एक्सरसाइज अनिवार्य है, बिकॉज एक्सरसाइज करने से एक लापरवाही है, शरीर में मोटापा आता है, आलस आता है, बहुत रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं। पर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से और ऐसी परिस्थिति में एक्सरसाइज करने से, जब हमें कोई हृदय की तकलीफ हो रही है या रिसेंट कोविड रिकवरी हो रही है, तो हम आज नहीं, ये ग्रीक टाइम से 500 बीसी से फिलिपिडिस सिंड्रोम था जो कि मैराथन करते करते जब पहुंचा तो उसकी डेथ हुई। याद रखिए, मैराथन रनर्स डोंट लिव लॉन्गर। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। गौतम बुद्ध साहब सिखा गए मिडिल पाथ, तो ना बिल्कुल कम ना बहुत अत्यधिक, बिकॉज सडन कार्डियक डेथ एथलीट्स में भी देखा गया है। बहुत उनके चेंजेस होते हैं हार्ट में, और हमें एक मिडिल पाथ डिटरमिन करना है ताकि हम इतना भी ना करें कि हार्ट हमारा दुखी हो जाए, पर इतना जरूर करें कि हार्ट के रिस्क फैक्टर्स कम रहें। जहां रह गई एक, मैंने आपको कहा था क्रिश्चियन एरिक्सन, ये कैप्टन था डेनमार्क की टीम का यूरोपियन कप सॉकर में। इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और इसको बाईस्टैंडर रिससिटेशन हुआ। वहीं पर आप देख रहे हैं बाकी टीम मेंबर्स प्रे कर रहे हैं, पर वहीं पर इसको शॉक दिया गया, इसको रिवाइव किया गया
और आपने देखा होगा 4 जुलाई को इसने मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन किया है। हालांकि पिछली गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-0 से हार गया, पर क्रिस्टियन एरिक्सन खेल रहे थे। इनको एक सबक्यूटेनियस आईसीडी इम्प्लांट किया गया क्योंकि उससे इनकी जान की को सेफ्टी होगी। और ये मुझे भी जान के अचंभा हुआ कि एक और ईपीएल प्लेयर था जिनको सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक नहीं पर कार्डियक अरेस्ट की संभावना थी, डैनी ब्लिंड। वो एक सबक्यूटेनियस आईसीडी जो कि अंदरूनी शॉक बॉक्स है उसके साथ ये प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। तो इसके बाद आई विल जस्ट शेयर विद यू दिस स्मॉल वीडियो ऑन हाउ टू सेव अ लाइफ। अगर समय होगा तो ये जस्ट एक वीडियो है कि ये चीजें आप कॉल करिए एंड ये इस प्रकार से हम ये लोगों को समझाएं कि कैसे शुरुआत में तो खांसी करने को बोल दीजिए, पर अगर व्यक्ति कोऑपरेट नहीं कर रहा, पुश हार्ड एंड फास्ट 100 से 120 बार हर मिनट। और ये आप देखेंगे कि बीजीज का नंबर भी इसी ट्यून पर था, स्टेइंग अलाइव। ठीक है, तो उसकी ट्यून भी, रिदम भी इसलिए थी ताकि स्टेइंग अलाइव। तो इसको मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं, बिकॉज ये मैसेज हमारे आज के लिए काफी हैं। अगर आई थिंक समय भी हो गया है और अगर कोई प्रश्न होगा तो हम लेने के लिए तैयार हैं। ये चीज याद रखिए, these are lifestyle diseases, 90% of them are preventable, not 100%. कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक अलग होते हैं। हार्ट अटैक के लक्षण पहचानने बहुत जरूरी हैं। एक्सरसाइज मॉडरेशन में करें, उचित आहार, उचित व्यवहार, समय अनुसार उचित उपचार, तो शायद नहीं पड़ेंगे हम बीमार। और जहां तक की बात है, हम अपना चटोरापन कम करें, हलवाई का दोबारा तले हुए खाना कम करें, और धूम्रपान बिल्कुल वर्जित है। Tobacco in any form is bad for any Indian. Thank you very much for your kind attention. We would be glad to answer any questions, and I can just stop sharing my screen. थैंक यू सो मच अनिल लाल साहब, और बहुत ही एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन था सर आपका। और ये आपकी दोनों की प्रेजेंटेशन से सर एक बात ये जो बिल्कुल साफ निकल के आई है कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लें, अपनी ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव कर लें, तो ये थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस रखने से आई थिंक इस बीमारी को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी पेशेंट के किसी के साथ ऐसा हो गया है तो उसको इमीडिएटली हमें क्या फर्स्ट एड देना है और क्या उपचार के लिए स्टेप लेना है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अविनाश, what should we do? We should request Deepak ji to take the questions, or should I take the question and then request, sorry, Dinesh ji? Yeah, you can take the questions, and thereafter we can request Dinesh ji to do the concluding remarks. Okay. There are few questions in the Q&A box. One has already been responded in his presentation. Yeah. So there are some questions, sir. तो जैसा भी हम लोगों ने बात की और थोड़ा ये देखने में भी आया है कि कोविड टाइम में हमने कार्डियक अरेस्ट के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम लोग बहुत फ्री थे और हम लोग न्यूज़पेपर प्रॉपर देख रहे थे और इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे तक आ रही थी, अदरवाइज कार्डियक अरेस्ट के केसेस होते भी रहे होंगे। बट इन दिनों पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो क्या ये कोविड-19 का इम्पैक्ट है या हमारी ओवर एक्सरसाइज का इम्पैक्ट है, या जैसे मैं आज, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, आज आई डोंट नो व्हाई बट आज सभी पेपर्स में हार्ट के बारे में था, और कॉन्स्टेंटली हम लोग आज ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, उसमें ये भी लिखा है कि अगर हमारी एज 35-40 से ज़्यादा है तो एक्सरसाइज करने से पहले भी या जिम जाने से पहले भी हम डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें कि कैसे करना है। तो इस पे थोड़ा सा आपका सुझाव चाहिए सर कि ये कोविड-19 का इम्पैक्ट है या ओवर एक्सरसाइज का इम्पैक्ट है सर। If I were to answer this, I will separate them into two separate questions. देखिए, कोविड जो कोरोना वायरस है, इट एक्ट्स ऑन ACE2 रिसेप्टर। वो रिसेप्टर को हम बहुत यूज करते हैं कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन में। तो मैं इस संक्रमण के टाइम के फेजेस आपको बताता हूँ। पहले 4 महीने में सारी दुनिया में लगा कि हार्ट अटैक गायब हो गया, क्योंकि संक्रमण के डर से लोगों ने प्रेजेंट ही नहीं किया। उससे क्या हुआ कि जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होनी थी, अस्पताल जाना था, वो या तो घर पे मर गए या उनको हार्ट डैमेज हो। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेज।
जब ये संक्रमण बढ़ता रहा, दूसरी चीज हमने नोटिस की कि ये एस इनहिबिटर्स कोई ज्यादा परेशानी नहीं कर रहे, और ये इसलिए थे क्योंकि ये हायर रिस्क पीपल थे जिनको कोविड का संक्रमण ज्यादा। उसके उपरांत हमने जो नोटिस किया कि एंडोथीलियम, जो वेसल की अंदर की लाइनिंग है, उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। हार्ट के मसल की 70% लोगों में इन्फ्लेमेशन होती है कोविड से। अब वो सबके लिए रेलेवेंट है? नहीं। क्या सबको एमआरआई कराना चाहिए? नहीं। क्या इको में आता है? नहीं। तो किसको रेलेवेंट है? वो कॉम्पिटिटिव एथलीट्स को रेलेवेंट है। जहां तक रह गई एंडोथीलियम की लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन, वो क्लॉट्स आर्टरीज में और वेन्स में दोनों बढ़ा दिए। क्या मतलब हुआ? आर्टरी में क्लॉट हुआ तो नाड़ियां बंद होने लग गई, दिल की धमनी बंद हो गई, जान की धमनी बंद हो गई, तो हमारी आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस हुई। वीनस थ्रोम्बोसिस, तभी डी डायमर का आपने देखा होगा, लोग टेस्ट कराते थे। अगर वेन्स में हमारी एंडोथीलियम डैमेज हुई तो क्लॉट्स जमे और वो फेफड़े में चले गए, और उनसे हमारे एक रिस्क वीनस थ्रोम्बोसिस का भी बढ़ गया। इसके अलावा एबनॉर्मल रिदम्स ज्यादा पाए गए, और सबसे ज्यादा हमने देखा कि लोगों को पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकिकार्डिया सिंड्रोम, व्यक्ति बैठा है, उसका हार्ट रेट 70 है, उसको खड़ा करो तो उसका हार्ट रेट 100-110 हो गया, लोग बड़े घबराने लग गए। अब ये एक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी या कार्डियोमायोपैथी है, जो कि मायोकार्डाइटिस है, जो कि कोविड के बाद होती है। हम इसमें एक ही चीज कहते हैं कि कोविड के उपरांत अपनी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट लो, गो स्लो। बहुत एनर्जेटिकली आप बिल्कुल नॉर्मल पे, या आप कॉम्पिटिटिव एथलीट हैं, जिम में घंटा लगाते हैं, जी नहीं, आप उसको 4-6 हफ्ते का विलंब दीजिए और फिर स्टार्ट लो, गो स्लो। जो दूसरा आपका पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग जिमिंग, तो जिमिंग बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता एक्चुअली। आप अगर देखेंगे, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देयर इज अ अपटिक ऑफ हार्ट डिजीजेस इन द लास्ट 2 years। आज से 3 साल पहले तक डाउनवर्ड ट्रेंड था, बट अगर हम देखें कि पिछले 2 साल में फिर से वो अपवर्ड ट्रेंड हो गया। और जिमिंग, हमारे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जिमिंग में। एक, हमारी जिम इंडस्ट्री कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है। दूसरा, हमारा जिम ट्रेनर हर एक को बोलता है कि ऋतिक रोशन और सलमान खान का क्रॉस बॉडी होनी चाहिए, तो वो आपको स्टीरॉयड खिलाता है बाय गिविंग यू कि ये वे प्रोटीन है, उसमें कुछ डाल के, ताकि अपना वो असर बता दे। तीसरी चीज, जिम में एईडी की मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए, कि जिस प्रकार से राजू श्रीवास्तव जी को अगर वहां पर जब प्रॉब्लम हुई, और अगर जिम इंस्ट्रक्टर बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में ट्रेंड होता, तो उन्होंने मसाज तो किया, पर अगर एडी होता, वही शॉक दे देते, तो शायद आज कुछ और होता। बट वो हम उसके बारे में जा नहीं सकते। पर बिल्कुल जिम बिल्कुल जो सही है, पॉइंट है। आपको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और ये एक, अगर उम्र ज्यादा है तो जिम जाने से पहले जरूर अपने फिजिशियन को दिखा देना चाहिए। आपकी डेफिनेटली। फैमिली हिस्ट्री, आपकी डायबिटीज, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें आपको वो गाइड करेगा कि आपको कैसे पता होने चाहिए। और कई बार हम लोग स्ट्रेस टेस्ट करके ही परमिट करते हैं कि अब आप जिम जाइए। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने बताया कि जिम में इस तरह के इक्विपमेंट भी होने चाहिए कि तुरंत किसी पेशेंट को फर्स्ट एड दे सकें। मैं अगला क्वेश्चन डॉक्टर रजनीश कपूर जी से लेना चाहूँगा सर। क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन गैस्ट्रिक एंड कार्डियक पेन। तो पहली बात तो जैसा ये समझ में आया कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो ऑल ऑफ अ सडन आता है, तो क्या इसके भी कुछ सिम्टम्स हैं जो जिससे आदमी को ये मालूम हो जाए कि हाँ ये ऐसे चांसेस हैं। और गैस्ट्रिक और कार्डियक पेन में एक नॉर्मल आदमी कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता है सर? सर देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गैस्ट्रिक और कार्डियक। पहली बात तो इसका कोई क्लियर कट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है। अब जैसे डॉक्टर ढल ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया, जो केके वाला सिंगर केके वाला सीक्वेंस था, उसको भी और पिछले कुछ और पर्सनालिटीज के लिए भी उनको लगा कि जैसे एक एसिडिटी जैसा उनको सिम्टम स्टार्ट हुआ, कुछ बर्निंग शुरू हुआ, कुछ डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ। अब वो बहुत हद तक, कई कुछ टाइम तक सब लोग यही सोचते रहते हैं ये कुछ एसिडिटी होगा या रिफ्लक्स होगा एसिड का, उसके कारण ये बर्निंग हो रहा है। बट देन इट टर्न्स आउट टू बी अ कार्डियक इवेंट, एंड इन दैट सिनेरियो such a valuable time is lost that practically we lost those guys. So
क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि जो अगर आपको एपिगैस्ट्रिक बर्निंग और कुछ एसिड जैसे सिम्टम्स लगते हैं, तो और आपका जो लाइफस्टाइल है वो इतना व्यस्त है, आप स्मोकर हैं या आप डायबिटिक हैं, जो आपका रिस्क फैक्टर प्रोफाइल हार्ट डिजीज का बढ़ा रहा है, अगर आप उस सबसेट में आते हैं तो आप ये सिम्टम्स, बर्निंग के या एसिड जैसे लगने वाले सिम्टम्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत जरूरी है जब ये सिम्टम शुरू हो तो एक ईसीजी करना अनिवार्य है। मैं ये नहीं कहूंगा 1 मिनट के अंदर ही आप उसको पैनिक में चले जाएं। if you are having these symptoms for 5-10 minutes and they are not going away and you are in discomfort, आप uncomfortable हैं, आपको कुछ हल्का फुल्का भारीपन लग रहा है, कुछ बर्निंग लग रहा है, क्योंकि 20-30% हार्ट अटैक्स ऐसे ही शुरू होते हैं जो जो इस तरह मिस हो जाते हैं। ये गैस्ट्रिक सिम्टम है, ये बर्निंग होगा, हमने कल कुछ खराब खाया था रात में, उसके कारण हमें ये लग रहा है, बट यू कैन नॉट टेक अ चांस, इट मीन्स अ लॉस ऑफ लाइफ एंड देयर आर मेनी मेनी बिग एग्जांपल्स। सो गैस्ट्रिक सिम्टम हो सकता है, मतलब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, पहली बात कोई बहुत क्लियर का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है। अगर व्यक्ति 40, 45, 50 साल के ऊपर है, उसको हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स हैं, उसको शुगर से पीड़ित है, वो स्मोकर है और उसका लाइफस्टाइल ऐसा आर्टिस्ट जैसा है जिसमें वो दिन रात भागता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती और वो वल्नरेबल है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको लाइटली नहीं लेना है। 5-10 मिनट के वेट के बाद उसको एक ईसीजी जरूर कराना है। सिंगल ईसीजी कैन एक्चुअली पिक अप द हार्ट डिजीज एंड सेव अ लाइफ वेरी क्लियरली। हाँ, अगर गैस्ट्रिक सिम्टम जैसा लगता है तो इनिशियली कुछ हमारे पास एंटासिड्स या पीपीआईज होते हैं, ड्रग्स जो रेनिटिडीन और पेंटोप्राजोल टाइप, उनको अपन लेके देख सकते हैं। इफ दैट इज इम्प्रूविंग एंड पेशेंट इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, मैं तब भी ये उस सिचुएशन में भी ये एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि उसको लाइटली लिया जाए। इवन if the patient is feeling better after 10 to 15 minutes, still get a ECG done, try to get a ECG done, उसको लाइटली नहीं लेना है। गैस्ट्रिक हो, कार्डियक अगर ईसीजी रूल आउट कर देता है, अगर ईसीजी बिल्कुल रूल आउट कर देता है, देन देयर इज अ मोर चांस दैट इट कुड बी गैस्ट्रिक। बट कई बार ये भी देखा गया है जो पहला ईसीजी है उसमें चीजें पिक नहीं होती, तब भी अगर ये सिम्टम चलता जा रहा है तो आधा पौना घंटा बाद एक और ईसीजी रिपीट करना चाहिए। अगर 2 ईसीजी में रूल आउट होता है तब ये कार्डियक इवेंट, एक्यूट कार्डियक इवेंट होने के चांसेस बहुत कम है, तब ये गैस्ट्रिक हो सकता है। अच्छी बात है अगर गैस्ट्रिक है, बट हमें इसके इम्प्लीकेशंस ये हैं, वी कैन एक्चुअली हैव अ लॉस ऑफ लाइफ हियर, सो वी शुड नॉट टेक इट इन अ कैजुअल मैनर। बिल्कुल सर, एक हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के रिगार्डिंग था। आई मीन द अटेंडीज ही हैज आस्क्ड दैट कि जिससे हम लोग नॉर्मली सर ये होता है कि ये रिकमेंडेड है कि भाई अगर आप 40 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं तो साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली करा लें, आई मीन रिस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज यू हैव और नॉट। तो उसमें आपका क्या सजेशन होता है कि क्या हम एक रेगुलरली ईसीजी करा लें साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, या ऐसे ही ईसीजी कराने में कोई सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, कोई मीनिंग नहीं है ऐसा करने का? आपका क्या सजेशन है सर? नहीं, बिल्कुल। सो बियॉन्ड 40 years of age, if somebody falls in that high risk factor profile, उसकी फैमिली हिस्ट्री में डिजीज है, फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज तब और स्ट्रॉन्गर हो जाती है अगर फैमिली में किसी को 55 साल की उम्र से कम में हार्ट डिजीज हुआ है, पीछे पेरेंट्स को या मैटरनल या पैटर्नल अंकल्स को हार्ट डिजीज है, अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, पेशेंट स्मोकर है या उसको प्री डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये रिस्क फैक्टर प्रोफाइल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तब 40 के बाद हम लोग ये कहते हैं साल में एक चेकअप। प्लेन ईसीजी इनफ नहीं है, एक स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए, जो ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस इको या स्ट्रेस थैलियम, हम लोग ये 3 स्ट्रेस टेस्ट अच्छे मानते हैं। तो मिनिमम एक स्ट्रेस टेस्ट होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का जांच होना चाहिए, शुगर का जांच होना चाहिए, किडनी फंक्शन का जांच होना चाहिए, बड़े सिंपल ब्लड टेस्ट हैं, और एक स्ट्रेस टेस्ट जिसमें स्ट्रेस इको ज्यादा बेटर होगा प्लेन टीएमटी से, तो वो करके देखा जाए। अगर वो चीजें रूल आउट करती हैं तब हम फिर भी एक आराम से बैठने वाली हालत में हैं। बट अगर इन चीजों में ये पकड़ा जाता है कि ये हार्ट डिजीज को ज्यादा वल्नरेबल है पेशेंट, देन वी नीड टू एक्ट।
तब एक सीटी स्कैन का टेस्ट होता है जिसमें हम कैल्शियम स्कोर करते हैं, तब वो नलियों में एक सीटी स्कैन के जरिए कैल्शियम स्कोर देखा जाए। बट अगर कुछ पॉइंटर्स उस तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं बेसिक टेस्ट के अंदर और जिनमें रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, तब हमें उस साइड पे चल के आगे जांच करना चाहिए। जो लोग रिस्क फैक्टर से पीड़ित नहीं हैं, जो सबसेट्स में रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं, वो इसको 45 के बाद भी शुरू कर सकते हैं, बट रिस्क फैक्टर वाले सबसेट्स को 40 के बाद सालाना एक बार ये सब चेकअप कराना जरूरी है। ठीक है सर। सो आई थिंक हमारा जो शेड्यूल है वो आई थिंक 1 बजे तक का ही था, एंड वी आर वेरी मच ऑन टाइम. So now I would request Dinesh Arora ji for the vote of thanks and concluding remarks, sir. Dinesh sir. Yeah, thank you, Neil sir. Thank you, Dr. Kapoor, Dr. Dhal. I think it's pleasant to meet you in a different format. And I think for audience, I believe most of us are in that age, like assuming 35 to 56 is an average age of the people who are attending this session. That's what I'm told. Summarizing both what they have told is not going to help. 3 factors which are very critical, Neeraj, you summarized it well. At post age of 40, getting a medical checkup, which should not be only ECG. Though we are talking about heart disease, a general body health checkup is must, because India may diabetes, oncology and other diseases are also on rise. Second, I think everybody has said prevention is better than cure. So Dr. Dhalka's statement is very appropriate. Uchit ahar, uchit vyavhar, and samay par upchar. Or, I think these things are very relevant. On the lighter side, I just cancelled my order on Zomato after while I was talking to sir. So we remember the challenge now, Dr. Dhal and Dr. Kapoor, is, there is so much available. There are so many options available. Temptations are so much, right? I think the packaging is, so much. I would also want, body like Hrithik Roshan. तो हम सबके लिए important है, knowledge is bliss. We take some learning and spread the awareness, spread the education. So I really thank entire team of ASSOCHAM, Neeraj ji, Krishan, Avinash, and Dr. Kapoor and Dr. Dhal. It really means a lot, you taking time out of your busy day. We really thank you. One point probably somehow, we got missed, and it is important for all friends to know. पुराने समय में हम अपने फ्रिज के ऊपर हमेशा इंपॉर्टेंट नंबर लिखते थे. अब मोबाइल आने के बाद वो एक प्रैक्टिस खत्म हो गई है. सो मेनी अ टाइम वी हेयर कॉल्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, आई एम स्टेइंग इन पंजाबी बाग एंड वी आर ट्राइंग टू get the patient all across the other side of the city in a traffic. I have been told by Dr. Kapoor and Dr. Dhal in the past, in such emergency situation, please take them to the closest possible good nursing center, because it's good to go to a operator which is good, but then timing is of essential thing. So with this, I thank you, everybody who attended this, and again sincere thanks to Dr. Kapoor, Dr. Dhal, and Neeraj ji, and entire team of ASSOCHAM. Thank you, sir. Thank you so Thank much, you. and special thanks to our attendees, those who are listening to us. और अटेंडेंस सर बीच में बढ़ी थी, अभी काफ़ी अच्छे लोग अटेंडेंस में हमें सुन रहे थे. So this shows the importance of the subject and the speaker, sir. Thank you so much once again, Rajneesh Kapoor ji and Dr. Anil Dhal Saab. Thank you so much. Thank you, Dinesh ji. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Thank you, sir. Thank you.